Good morning, students. Today I am going to start a new chapter 3, that is plant kingdom. And in this chapter we will discuss algae, bryophytes, pteridophytes and gymnosperm. Angiosperm is not there in the syllabus. Okay? So first we will discuss about algae. All of you know that algae, so that is autotrophic, because most of the algae they are chlorophyll bearing plants. So when the chlorophyll is present, then naturally they are autotrophic, they can prepare their own food. Okay? So here the plant body, that is very simple, and the plant body is called thalloid. From thallus the word is derived, thalloid. Okay? So what is the meaning of the thallus? Thallus is the plant body where there is no difference between root, stem and the leaves. As in the angiospermic plant, you can see there is a distinct root is there, stem is there and the leaves are there. But here in the algae there is no such kind of the root and the stem and the leaf. Simply the plant body, so that is just like either one single cell or a colony or the leaf-like structure. So that is called thallus. Okay? And mainly the algae, they are aquatic. They are found in water. Either it can be fresh water or it can be marine water. Sea में भी आपको मिलेंगे और river and the pond इसमें भी आपको algae मिलेंगे. Occur in a variety of habitat. So mainly they are aquatic, but also they are found on the moist stone or the wood or the place where the moisture is there. So the habitat, so that is also you can see there is a variety of habitat. In the different type of the habitat also algae they are available. Then the form and the size is variable. If you take the shape and the size of the algae, that is also variable. For example, suppose you take Chlamydomonas. Chlamydomonas, the body is made up of a single cell. For example, suppose you take volvox. Now the volvox, many volvox they join together to make a colony. So either it is a single cell or it is a colony, or for example the Spirogyra, the body is filamentous, just like the filament. And the colony many are joined together, then they are covered by a seed. Chlamydomonas, that is a single cell. Or you can see also tree-like. For example, suppose you take red algae और brown algae जो आपको सी में मिलेंगे, तो उनका साइज जो है ह्यूज है, और वहाँ पर मेनली प्लांट बॉडी जो है आपको थोड़ा सा रूट जैसे दिखेगा स्ट्रक्चर, और मेनली ये ब्रांच जैसे दिखेगा. सो दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑल्सो. तो यहाँ पर अगर आप शेप में साइज ले रहे हो तो ये वेरिएबल है, आपको अलग अलग शेप का एल्गी जो है ये मिलेंगे हैबिटेट्स में. अब एल्गी किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है, आइदर वेजिटेटिव और एसेक्सुअल और सेक्सुअल. तो यहाँ तीन अलग अलग वे है जिससे हम लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. वेजिटेटिव में किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बाय फ्रैगमेंटेशन. लाइक फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज अ फिलामेंट ऑफ स्पाइरोगायरा. एंड स्पाइरोगायरा इज फाउंड इन वाटर, पानी में रहता है. अगर स्ट्रॉन्ग करंट है वाटर का तो ये फिलामेंट जो है ये फॉर एग्जांपल ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ओके, अब ये पार्ट जो है ये अपने ग्रो करके अलग इंडिविजुअल बनाएगा, मिडिल पोर्शन जो है वो भी ग्रो करके अलग इंडिविजुअल बनाएगा, और नीचे वाला जो है ये भी अलग इंडिविजुअल बनाएगा. तो एक फिलामेंट से तीन फिलामेंट्स का डेवलपमेंट हो रहा है. तो ये हो गया वेजिटेटिव मेथड. एसेक्सुअल मेथड जो है ये किस तरह से हो रहा है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस फोर. लाइक फॉर एग्जांपल सपोज यू टेक वन फिलामेंट. अब ये फिलामेंट में बहुत सारे सेल हैं, कोई एक सेल ये स्पेशलाइज्ड हो जा रहा है, इसका शेप बदल जा रहा है. अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, जूस हो रहा है, जीएम. इसके अंदर में जो साइटोप्लाज्म द न्यूक्लियस जो है ये छोटा छोटा मास में डिवाइड हो जाता है, और हर एक मास जो है उसके चारों तरफ में एक सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है, और आगे हम इसको क्या बोलेंगे, जूस बोल. तो इस तरह से जूस फोरेजिंग जो
इसके अंदर में आपको बहुत सारे जून स्पोर मिलेंगे। जब जून स्पोर जब मेच्योर हो जाएंगे तो स्पोरेंजियल वॉल जो है ब्रेक करेगा और जून स्पोर जो है बाहर मीडियम में आ जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो ये जहाँ पे गिरेंगे अगर उनको मॉइस्चर मिलेगा तो ये जनरेट करेंगे और न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So how it is taking place? There are three different methods. One is the isogamous, another is the anisogamous, third is the oogamous. तो यहाँ तीन अलग-अलग वे से ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो एल्गी जो है ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर आपको ऐसे डिस्टिंक्टली मेल एंड फीमेल फिलामेंट नहीं मिलेंगे। एक को हम प्लस बोलते हैं, दूसरे को हम माइनस बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर प्लस एंड माइनस फिलामेंट जो है ये मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। एक फिलामेंट जो है ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, दूसरा फिलामेंट जो है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। जिस तरह से आपके जून स्पोरेंजियम के अंदर में जून स्पोर का फॉर्मेशन हुआ जो हमने एक्सप्लेन किए, उसी तरह से एक फिलामेंट जो है उसका कोई एक सेल जो है ये स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा और दूसरा फिलामेंट जो है उसी तरह से उसका भी एक सेल जो है स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? तो मेल और फीमेल गैमेट जब वो सेल से जब बाहर आ जाएंगे, सराउंडिंग्स में आ जाएंगे ना, आइदर दे कैन बी मोटाइल और दे कैन बी नॉन मोटाइल। अगर ये गैमेट मोटाइल है तो उसमें आपको फ्लैजेला मिलेगा, दिस इज फ्लैजेला। अगर ये नॉन मोटाइल है तो आपको फ्लैजेला नहीं मिलेगा। दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो ये मोटाइल है या फिर ये नॉन मोटाइल है। अब फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज द मेल गैमेट एंड दिस इज द फीमेल गैमेट, then in the water when they come in contact with each other तब ये दोनों फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके एक सिंगल सेल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे जाइगोस्पोर। अब ये जाइगोस्पोर जो है यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस जो है ये ज्वाइन और फ्यूज हो रहे हैं तो ये डिप्लॉयड है। अब ये मेयोटिकली मेयोसिस से ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करके ये स्मॉल स्मॉल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोल रहे हैं मियोस्पोर। तो मियोस्पोर जो मैच्योर हो जाएगा ये वॉल ब्रेक करेगा जाइगोस्पोर and they will come into surrounding। अब ये जनरेट करके न्यू इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो आइसोगैमस मींस if male and female gamete they are similar in morphology and physiology। अगर दोनों में किसी तरह का चेंज नहीं है, दोनों सेम दिख रहे हैं, तो इस तरह का रिप्रोडक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? आइसोगैमस। आइसो मींस इक्वल, बराबर, और एनाइसोगैमस मींस अनइक्वल। If the male gamete is different, the morphological feature is different, and the female gamete is different, or if the male gamete is motile and the female is non-motile, अगर आपको किसी तरह से morphological difference मिल रहा है या physiological difference मिल रहा है, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? Anisogamy। और oogamous जो है यहाँ पर आपको एक मेल सेक्स ऑर्गन और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। ऑल्दो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड आपको नहीं मिलेंगे, बट एक स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस मिलेगा। एक को आप बोलोगे मेल सेक्स ऑर्गन, अनदर इज कॉल्ड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो वहां पर हम लोग जो मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे और उनका फ्यूजन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? oogamous। तो यहाँ तीन अलग अलग वे से सेक्सुअली एल्गी जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। अब एल्गी के बहुत सारे यूजेस है, क्योंकि ये ग्रीन फिलामेंट से क्लोरोफिल है तो नेचुरली हम लोग फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड दे आर आल्सो प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है ये रिलीज हो रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट। सो प्लांट्स आर रिस्पांसिबल टू मेंटेन द ऑक्सीजन साइकिल और एल्गी जो है जिनका नंबर काफी ज्यादा है ये ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं एंड ऑल्सो ये फूड भी सप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे एल्गी जो है उसको हम लोग फूड के रूप में भी हम लोग लेते हैं। सो दे आर प्रोड्यूसर ऑल्सो एंड दे आर ऑल्सो सप्लाइंग ऑक्सीजन टू द एनवायरनमेंट। बहुत सारे एल्गी जो है ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जो है ये प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाम क्या है? एल्जिन, कैरेजियन एंड द अगर। तो ये सारे कंपाउंड जो है उनको पानी को होल्ड करके रखने का एबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज टेक अगर जो है उसका हम लोग कल्चर मीडियम बनाते हैं लैब में। अगर आपको कोई बैक्टीरिया ग्रो करना है तो हम जो मीडियम बना रहे हैं हम उसमें अगर डाल रहे हैं। अगर जो है ये जेली जैसा है, ये आपका आइसक्रीम में भी यूज हो रहा है, जेली में भी यूज हो रहा है, आइसक्रीम में भी अगर यूज हो रहा है। That the chlorella and the spirulina, these are also algae. They are rich in protein. Chlorella and the spirulina में high amount of protein रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज टेक दाल, आपको मालूम है दाल में काफी प्रोटीन है, हम लोग इसलिए दाल खाते हैं। अगर दाल का अगर आप क्वांटिटी और स्पिरुलिना का क्वांटिटी अगर आप मेजरमेंट करोगे तो इसका 1
ग्राम जितना प्रोटीन सप्लाई करेगा, हो सकता है यहाँ पर आपको 50 ग्राम दाल उतना सप्लाई करेगा। सो दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन, इसीलिए जो स्पेस ट्रैवलर है, जो स्पेस में जाते हैं, उनको बहुत कम क्वांटिटी में फूड लेना है, वो हम लोग जैसे दाल चावल नहीं खाते हैं। तो उन लोग ये जो सप्लीमेंट है क्लोरेला स्पिरुलिना जिसमें हाई प्रोटीन है, तो पाउडर के फॉर्म में रहता है, उसको उन लोग यूज करते हैं। आजकल बहुत सारे पाउडर जो है स्पिरुलिना क्लोरेला जो है उसको फार्मिंग भी करते हैं, सो दैट बॉटल में उसको बंद करके उसको मार्केटिंग करो ताकि इसको हम सप्लीमेंट के रूप में ले सकें। सो दीज आर ऑल डिफरेंट यूजेस ऑफ एल्गी। Algae is mainly divided into 3 groups: Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. So one by one we will discuss about the character of these different groups. Chlorophyceae, the first one, so that is Chlorophyceae. Chloro means chlorophyll, तो ये green algae है, and either they can be unicellular or in the form of the colony or in the form of the filaments. Now which type of the chlorophyll pigment is mainly present? So that is chlorophyll A and chlorophyll B. Then chloroplast may be of different shapes. यहाँ पर chloroplast जो है ये अलग अलग shapes में आपको मिलेगी, या तो डिस्क जैसा है, या फिर कप शेप में है, या फिर प्लेट जैसा है, या फिर रिबन जैसा है, या फिर स्पाइरल है। तो आपको बहुत अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। जनरली आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़े हो कि ये आपका या तो स्फेरिकल या फिर ओवॉइडियन शेप है, बट यहाँ एल्गी में आपको अलग अलग तरह का क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। Then pyrenoid are present in cytoplasm. Pyrenoid क्या है? Pyrenoid में आपका रिजर्व फूड रहता है, और कौन सा फूड रहता है? So that is protein. तो यहाँ पर आपको इस तरह से बहुत सारा वैक्यूम मिलेगा जिसके अंदर में आपको प्रोटीन का स्टोरेज मिलेगा, एंड these are called pyrenoids. ग्रीन एल्गी जो है, सेल वॉल जो है किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज से बना हुआ है, दैट इज द इनर लेयर, और सेल्यूलोज की चारों तरफ में जो लेयर है ये पेक्टिन से बना हुआ है, सो दैट इज द लेयर ऑफ पेक्टोज। देन रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं? या तो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ द जूस स्पोर, या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, व्हिच कैन बी आइदर आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। एग्जांपल क्या है? क्लैमिडोमोनास जो एक सिंगल सेल एल्गी है, वॉल्वस जो कोलोनियल है, स्पाइरोगैरा जो फिलामेंटस है। Now the second group, so that is Phaeophyceae. Phaeophyceae are commonly called brown algae. As Chlorophyceae they are called green algae. So Phaeophyceae is known as brown algae. And the main chlorophyll pigment, that is chlorophyll A and C. In the Chlorophyceae it was chlorophyll A and B. Here you can see there is chlorophyll A and C. And besides chlorophyll pigments also there is carotenoid pigment and the xanthophyll pigment, they are also present. So the brown algae, you can see there are different colors are there, and orange color or the brown color, so different color because of the different type of pigments. And the plant body, so that is divided into 3 parts. One is the holdfast, style and front. You see here the diagram, the holdfast, so that is just root like structure which is connected to stone, because these are mainly marine, they are found in the sea water. तो ये स्टोन से जुड़ा हुआ रहता है, स्टोन से किस तरह से जुड़ा हुआ रहता है? ये होल्ड फास्ट जो है वो उससे चिपका हुआ रहता है, उसको फिक्स करना है। Then a small stake like part, so that is called style. Then this leaf like portion, so that is called front. So the plant body is divided into 3 parts: hold fast, style and front. Mainly marine, and the cell wall is made up of cellulose and algae. सेल्यूलोज जो है इनर लेयर है, उसके चारों तरफ की जो लेयर है वो किससे बना हुआ है? वो एल्जिन से बना हुआ है। किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? सेम पॉइंट है, या तो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो रिजर्व फूड मटेरियल जो है उसका नाम क्या है? लैमिटेरिन और मैग्नेटॉल। वहाँ पर हमने क्लोरोफिल में क्लोरोफाइस में बताया, सो दैट इज पाइरिनॉइड वेयर द प्रोटीन इज स्टोर्ड। सो हियर मेरे द स्टार्च जो है ये फ्लोरिडियन स्टार्च है, फ्लावर जैसे आपको स्टार्च दिखेगा, और उसका नाम है लैमिटेरिन और मैग्नेटॉल। एग्जाम्पल क्या है? एक्टोकार्पस, लैमिनारिया एंड फ्यूकस। थर्ड ग्रुप दैट इज कॉल्ड रोडोफाइसी। रोडोफाइसी आर आल्सो नोन एज द रेड एल्गी। तो यहाँ पर रोडोफाइसी जो है उसका कलर क्या है? रेड कलर है। रेड कलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक रेड पिगमेंट है जिसका नाम है R5-HT, और ये आपको मैराइन सी में ही मिलेंगे। सी में भी जहाँ
कोल्ड एरिया मिलेंगे, वार्म एरिया मिलेंगे। तो जहाँ पर वार्मर एरिया है तो वहाँ पर आपको रोडोफाइसिन मिलेंगे। और रोडोफाइसिन जो है इसका साइज भी ब्राउन एल्गे जैसे काफी बड़ा रहता है। अगर बहुत नियर द सर्फेस ऑफ द वाटर और एट ग्रेट डेप्थ, या तो आपको ऊपर वाला पानी का लेयर में आपको मिलेंगे या फिर पानी के अंदर काफी ज्यादा डेप्थ में भी आपको रेड एल्गे मिलेंगे। थैलस इज मल्टी सेल्यूलर, यहाँ पर प्लांट बॉडी जो है ये मल्टी सेल्यूलर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए हम डायग्राम ड्रॉ किए हैं, ये थोड़ा बहुत प्लांट का ब्रांचेस जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो छोटा मोटा प्लांट जैसा है, ये रेड एल्गे जो है ये दिख रहा है। और ये सॉरी हम गलत बोले, फ्लोरिडियन स्टार्च जो है ये आपका रेड एल्गे में मिलेगा, ब्राउन एल्गे में नहीं। ब्राउन एल्गे में आपको मैनिक्रोन मिलेंगे और रेड एल्गे में जो है यहाँ पर फ्लावर जैसे स्टार्च स्टोरेज रहता है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं फ्लोरिडियन स्टार्च। और वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस कर रहा है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है बाय द फॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर। देखिए वहां पर क्लोरोफाइसिन या थियोफाइसिन में मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत एडवांसमेंट हो गया, यहाँ पर स्पोर्स जो है ये नॉन मोटाइल है। और उसी तरह से मेल एंड फीमेल में जो प्रोड्यूस हो रहा है ये भी नॉन मोटाइल है, ये सेक्स ऑर्गन के अंदर में प्रोड्यूस हो रहा है, देन दे कैन फ्यूज टुगेदर। और एग्जांपल क्या है,